live, I'll just tell you. We are live, Amit. Hello and welcome to this live presented by Men Welfare Trust and Safe Family Foundation. A crime is a crime and a victim is a victim. Ideally, the seriousness of the crime or how we deal with it should not depend on the gender of the victim. But sadly, some of our laws do not protect the victim when he's a man. जी हाँ, हमारे कानून पुरुषों पे घरेलू हिंसा या पत्नियों द्वारा पत्नी के ऊपर की गई प्रताड़ना, क्रूअल्टी को एक्नॉलेज नहीं करते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या 498 है, 8 है या 304 बी, इन सभी में पुरुष एक परपेट्रेटर तो हो सकता है लेकिन एक विक्टिम नहीं हो सकता. हाल ही में बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पति और उनके परिवार द्वारा पत्नी और उनके परिवार द्वारा पतियों को, जी हाँ, पतियों को जला दिया गया या मार दिया गया. और बहुत से ऐसे केसेस में एक्सीडेंट या सुसाइड दिखाकर या एफआईआर को इस तरीके से दाखिल किया गया जहां पर महिला को, जो कि परपेट्रेटर है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. वैसे तो बहुत से दूसरे जेंडर बाइज्ड लॉज भी हैं, रेप के लॉज, मेंटेनेंस, पॉश इत्यादि, जो पुरुषों को कोई संरक्षण नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं. उनकी चर्चा हम फिर किसी दिन करेंगे. लेकिन जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको मुद्दे के तौर पे कभी भी नहीं उठाया गया है. जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं हस्बैंड मर्डर्स की. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल है जिनके पर्सपेक्टिव हम इस चर्चा में लेंगे. चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ है मिस स्मिता दीक्षित. Smita ji, she's an advocate at the Supreme Court and she also practices in the district courts and various high courts. Hello, Smita ji, thanks for joining us. I hope you can hear us. Yes, I can. Thank you for inviting me on this panel. Thank you, Smita ji. Then we have Mr. P.K. Malhotra. List of his credentials is endless, but I'll introduce him as former Secretary, Ministry of Law and Justice. He's got vast experience in the process of lawmaking and law reforms. Thank you, Malhotra ji, for joining us. Thank you very much. Thank you for inviting me. You're welcome, Mr. Malhotra. Then we have Mr. Lohit Mathani. Mr. Mathani is an IPS officer. He's authored many books and presently serving in the State Reserve Police in Maharashtra. And he's somebody who understands laws and the criminal behavior. Thank you, Mr. Mathani. Thank you very much. Wasif Ali ji hai. Wasif Ali is a well-known men's rights activist. He represents Safe Family Foundation, an NGO from Delhi, is also running a helpline for men in distress. Thank you, Wasif. Then we have Gaurav. Gaurav is basically, he comes here as a victim, as a case study. Gaurav is from Faridabad and he will be sharing his story, which is very relevant to today's discussion. And there is another person, we will not, he doesn't wish to reveal his identity, so we'll call him Raju. We don't want to wish to take his real name. We'll call him Raju, and he will be sharing a horrifying experience that he had in his marriage. But before we begin our discussion, let's look into some recent cases of husband murders from across the country, which was reported in the recent times. Can we have those slides? लॉकडाउन में ससुराल में फंसे दामाद की हत्या. Can we have the slides on the screen? Wait, Amit. Amit, you can continue. There is some issue in the system. So I'll restart it. Okay. So हम शुरू करते हैं राजू से. Raju is a person who's come here today and he will share his story. There was an attempt to burn and kill him by his wife and he suffered about 45 to 50% burn.
एंड राजू ने वहां से एस्केप किया और हमें खुशी है राजू आज ठीक ठाक है, हमारे साथ हैं। राजू अपने बारे में शेयर करेंगे। राजू, आई वांट यू टू टेल व्हाट हैपेंड विद यू। राजू। Hello everyone. Thank you for giving chance to me to speak. मेरा बताइए राजू। जो मेरा शादी जो हुआ था वो अरेंज मैरिज था और 2 साल की शादी में सिर्फ मेरे साथ 9 महीना रुकी थी वो, और ज्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं था, मतलब साथ में अच्छे से रहना वो सब नहीं था, कुछ इश्यूज हुआ करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने घर पे था और जो चूल्हा होता है फायरवुड तो उसके पास बैठा हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे घर पे पेंटिंग होती थी दिन के टाइम पे, क्योंकि सिस्टर का मैरिज था। तो इसने क्या किया था कि जो पेंट होता है, थिनर होता है ना, जिसको पेंट में मिक्स था, वो ब्रश धोने के लिए जो यूज होता है, वो मेरे ऊपर जी। डाल दिया था। तो ओह। कुछ मेरे ऊपर गिर गया हाफ साइड पे, और कुछ स्टोव उस पे चूल्हे पे गिर गया जिसमें जलते हुए कोयले थे, तो उसे आग लग गई। तो मेरी मम्मी और सो सिस्टर भी आपके घर पे बीच में थे। पहले ही डिस्प्यूट चल रहा था? इट वाज अ मैरिज जहां पर आपके बीच में डिस्प्यूट्स थे और कुछ बातचीत इस तरह से थी कि उसने नोइंगली कि इससे आग लग जाएगी और आप चूल्हे के पास हैं, वो हाँ कंबस्टिबल मटेरियल डाला और आपके ऊपर आग लग गई। जी हाँ, मतलब डिस्प्यूट था, और पहले भी कई बार डिस्प्यूट हुए थे, नहीं रहना, अपने फैमिली के साथ रहना, वो सब चीजें, मतलब कि तो उस टाइम पे भी थोड़ा डिस्प्यूट था करके। लेकिन जब उसने ये किया उसके बाद मेरी मदर और मेरी सिस्टर दोनों सो रहे थे। हम तो आपकी पिक्चर्स देख सकते हैं जब आपको आपके साथ ये सब हुआ, इट इज ऑन द स्क्रीन। तो उसके बाद राजू फिर आपने क्या किया? एफआईआर हुई, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नहीं, फिर वो मेरे को जब उसने मैं जब जलने लगा आग से, तो मेरी सिस्टर ने आके हेल्प किया, मेरे ऊपर पानी डाला, फिर मेरे ब्रदर लोग को कॉल किया, फिर मुझे ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और 15 दिन 20 दिन मुझे पता ही नहीं टाइम कितना टाइम तक मैं अनकॉन्शियस था, कुछ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं था मुझे। तो उसके बाद लगभग 4-5 महीने मैं हॉस्पिटल था, मेरा कंटिन्यूस स्क्रीन ग्राफ्टिंग होता रहा। फिर जब डिस्चार्ज हुआ, रिकवरी स्टेट में आया मैं, फिर मैं चाहता था कि उसके अगेंस्ट कंप्लेन करूं, बट वो ऑलरेडी 498 फाइल कर चुकी थी और मेरा कंप्लेन नहीं लिया गया। ओ, तो मतलब आपके ऊपर ये एक तरह से अटैक हुआ आपके ऊपर, ये पूरा उसने किया और उसके बाद आप ही के ऊपर एक दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। दहेज पे, हाँ, उसने, मतलब ये इंसिडेंट होने के 6-7 महीने बाद जब मैं थोड़ा रिकवर किया, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि उसने ऑलरेडी मेरे ऊपर वो वाला केस कर दिया है करके। अच्छा। फिर और आपकी तरफ से एफआईआर करने में कितना समय लगा? मेरे 6-7 महीने का टाइम था, जब मैं रिकवरी पोजीशन में आ चुका था, घर से बाहर निकल सकता था, क्योंकि वो फेस पूरा, फेस, चेस्ट, हाथ पूरे जल चुके थे। तो आज तक वो ठीक से रिकवर नहीं हो पाए हैं। स्किन ग्राफ्टिंग हुआ है वेरी मेरी सैड। बॉडी पे। तो वो ऑलरेडी कर चुकी थी, और मेरे को एंटरटेन नहीं किया गया उस चीज पे। तो आपके आपकी तरफ से एफआईआर मतलब नहीं की जा रही थी? मेरी तरफ से एफआईआर नहीं की गई, कि मतलब ली नहीं गई, मेरा कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या कहा आपको जब आप पुलिस में गए तो? ऑलरेडी उसने फाइल कर दिया है, और बाद में आना, वैसे आना, वो सारा चीजें होता रहा। उतना मतलब सपोर्ट भी नहीं मिला मुझे। उसके बाद डिवोर्स केस किया, मेंटेनेंस केस किया उसने, तो सारे अच्छा, केसेस किए। आपके ऊपर मेंटेनेंस, डिवोर्स इस तरह के केसेस किए गए? हाँ, मेंटेनेंस डिवोर्स केसेस किए गए, चल भी रहे अभी तक केसेस। अभी तक केसेस चल रहे हैं? और इस सब दौरान आपका करियर, आपकी जॉब, आपका जो भी आप करते थे, हाँ, वो तो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हो गया। मैं आपकी पहले, लाइफ पूरी चेंज हाँ, हो गई होगी। मैं पहले अच्छा काम करता था, उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरा फिंगर्स आज तक बेंड है, मैं प्रॉपरली काम नहीं कर पाता हूँ। तो कई मतलब जॉब नहीं मिल रहा है, ट्राई भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है करके, पता नहीं। एक्सट्रीमली सैड। राजू, और कुछ हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे अगर कुछ आप हमें नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर आप कुछ और हमें बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ये आपकी मैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको कैसा लगता है अभी? बाद में ये भी पता चला कि शी गॉट प्रेग्नेंट, शी डिलीवर अ बेबी, तो ओके। अफेयर था उसका, और
ये सब अच्छा हुआ उसका करके। अफेयर था और ये she delivered a baby while I mean you're trying to say that that baby is not yours That baby is not biologically. yours. मेरे पास एविडेंस है, कोर्ट में सबमिट भी किया कि that birth certificate and her pregnancy record, तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो Okay, मतलब उसका अफेयर ही था या क्या था एग्जैक्टली नहीं पता, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा कर दिया उसने। extremely sad. तो कितना एविडेंस Thank you सबमिट करने के बाद भी कुछ नहीं राजू। हुआ। जी कभी कभी हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में। what you have already lost I don't think anybody can give you back. I don't think there is any justice which can actually give you any kind of solace. हम यही उम्मीद करते हैं कि कानून हमारे ऐसे हों कि जो ये ना देखें कि क्राइम अगर किया है तो वो एक पुरुष ने किया या एक महिला ने किया है। क्राइम क्राइम होता है और क्रिमिनल का जेंडर नहीं देखा जाना चाहिए। थैंक यू राजू, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एंड हमारे साथ गौरव भी हैं। गौरव फरीदाबाद से हैं। गौरव, आप हमें सुन सकते हैं? Yeah, Amit, I can hear you. सो गौरव, आप फरीदाबाद से हैं और अभी 3-4 दिन पहले ही हमने ट्विटर पे भी देखा आपके ऊपर मतलब घरेलू हिंसा से बात शुरू हुई और आपके ऊपर हमला किया गया एंड यू वर ब्लीडिंग। आपकी वो फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोगों ने देखी एंड क्या हुआ क्या था गौरव? Uh, See, so it's been 8 years I have married. My marriage, in the past 8 years, there have been multiple times when my wife have attempted to frame me and my parents in various complaints. So within after 6 months of my marriage, the first complaint was framed in Meerut. The second complaint was filed by her in 2014 in Delhi. When she even ये आपकी फोटोग्राफ है right, जो हम देख right, सकते हैं, जो अभी अभी आपको मारा गया। right. तो इससे पहले भी अटेम्प्ट हुए हैं कभी? मतलब एक तरह से यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सम काइंड ऑफ फिजिकल क्रूएल्टी फॉर क्वाइट सम टाइम। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि आपको मार दिया या जिस तरीके से अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहां से ना भागते तो शायद कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर ही ना हो जाता। तो पहले भी ऐसा ऐसे हो सकता था अमित, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट पिछले 8 साल में बिहेवियर डे बाय डे अग्रेसिव होता है, और जब जब भी अग्रेसिव होता है और मैं ऑब्जेक्ट करता था उस चीज पे, तभी तभी मेरे इन लॉज की तरफ से और मेरे वाइफ की तरफ से मुझे 100 नंबर पे कॉल करके फ्रेम किया गया है। बट whenever police does the investigation, they do not found any very sound reality to frame me। और उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि चलो ठीक है, घर का झगड़ा है, आप भी भूल मतलब जाओ आपके वाइफ। आपके ऊपर हमला करके आपको मार के फिर पुलिस को कॉल कर दिया जाता है ये कहकर कि पहले 4 बार में अमित उन्होंने हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना अभी 2 या 3 बार से शुरू हुआ है। बट ये जो मेरे साथ अभी परसों हुआ है 2-3 दिन पहले, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट कि वो अब इस लिमिट तक भी जा रही है जहाँ पे वो बिना सोचे समझे मार भी सकती है। और हम देख सकते हैं किस तरीके से आपको सिर पे चोट आई है और यू And what was ब्लीडिंग। more disturbing is that after I was hit, she was, completely calmed down. She touched my injury, multiple times from her fingers. And when probably she was sure that कि ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं लगा है, there is nothing dangerous, then she was, quite chilled out. मतलब there was no regret. There was no regret in the face. It's been 4 days. I have not, entered into my home, and she haven't even attempted to make a call to me asking my whereabouts. I've been sleeping in my car तो for the last 3 nights. आपको लॉकडाउन के दौरान आपको अपना घर छोड़ना पड़ा और आप गाड़ी में सो रहे थे 2-3 दिन से अपने। जी, and I knew that, when I left the home that day, मेरे घर में शायद दूध और फ्रूट्स 2 या 3 दिन के लिए थे for my kids, for my daughters. So today I just thought about them. मैं सुबह सामान लेकर के मिल्क एंड फ्रूट्स लेकर के गया, मैंने सोसाइटी के गेट पे छोड़ा। I requested to the guard to deliver those things to my home, and she just refused it. So the problem is not only that she is thoughtless about me, she is also thoughtless about the kids as well. So you're feeling that kids are also not being taken care of properly and इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन हो सकता I है mean, I किड्स को don't भी feel हार्म it ना is कर। it is quite evident because मैंने गार्ड से पूछा, वो 3 दिन में कहीं बाहर निकली नहीं है, कोई आ नहीं रहा है सोसाइटी में। So it is very very evident कि
जो भी सामान चाहिए बच्चों के लिए वो नहीं गया है घर में। और आपको इस समय ऐसा भी लग रहा था जब आपके ऊपर ये हमला हुआ, इस तरह से मारा गया, कि शायद कभी आप सो रहे होते और इस तरह से कोई अटैक कर दे आपके ऊपर, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से, या फिर पॉइजन कर दे? मतलब जब इतना ज्यादा हेट और इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप, तो आदमी मतलब किसी भी हद तक वो सिचुएशन पहुंच सकती है। तो इस तरह का डर था जो आप अपना घर छोड़ के चले गए? अमित, ये डर पहले भी था, बट स्टिल आई वाज जस्ट फेसिंग दिस फियर जस्ट बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स। मैं जितनी प्रिकॉशंस ले सकता था, वी हैव स्टार्टेड स्लीपिंग इन डिफरेंट रूम्स, बट इट इज हर डिसीजन की, हाँ कभी वो बहुत ज्यादा स्वीट हो जाती थी, चलो ठीक है हम साथ में रह लेते हैं, एंड इवन आफ्टर 2 to 3 days वो स्वीट मोमेंट खत्म हो जाता है। तो महीने में ये साइकिल चलती रहती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्लीपिंग अलोन, कीपिंग माय डोर क्लोज्ड। लेकिन ये जो अभी 3 दिन पहले हुआ है, उसके बाद तो आई कैन नॉट बिलीव देन शी कैन गो टू एनी डिग्री, because there was no remorse on her face. There was mental, physical, all kind of cruelty and domestic violence which was perpetrated on you, and you had to leave your house. And the now, unfortunate thing is that whenever she attempted to frame me, it was within minutes when the police came to arrest me, without Sure. even asking that whether I have done anything or not. And I have been sitting for the entire day in police stations for the last 3 days, and police have been promising me of a fair action, but till date I have not been given any information that a proper FIR or some other action have been taken. अभी कोई FIR हुई है? आपने कोई FIR इनिशिएट करी है? उनके ऊपर कोई FIR की गई है अभी इस वक्त? मैंने कंप्लेन 27th को ही किया था, on the day of assault. I was promised that an FIR would be filed, but then the latest update that I received today from the police station is that they are telling me that they have done a proper action. What action they have taken? क्या रीजन दे रहे हैं वो? क्या रीजन दे रहे हैं कि वो FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दबाव है उनके ऊपर? They are neither saying they haven't registered FIR. They are not saying that they have registered an FIR. They are saying कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है और आपको अब कोर्ट से समन्स आ जाएंगे. So I am not able to understand that what action does police takes which takes directly to the magistrate. और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उस चीज की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एक आदमी विक्टिम होता है तो सोसाइटी का और पुलिस का और इन सब महकमों का किस तरह से रुझान होता है। गौरव और राजू, हमें बहुत अफसोस है और वी आर इन कंप्लीट सॉलिडारिटी विद यू। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जैसे बहुत से पुरुष जो ये अभी फेस कर रहे होंगे, शायद आप लोगों को देखकर बाहर आके बात करने की हिम्मत करेंगे। गौरव एंड राजू, आप इस प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो गौरव और राजू ने जिस तरीके से एक तरह से हमें बताया है कि ये भी एक सोसाइटी का एक पहलू है जो आज हम देख रहे हैं, और कैसे एक पति भी स्पाउसल वायलेंस का विक्टिम हो सकता है और आगे चल के ये वैसे ही अंजाम में तब्दील हो सकता है जैसे अभी हम हस्बैंड मर्डर की मीडिया न्यूज और अभी ये सब चीजें हम लोगों ने अभी शेयर करी और हमने देखी। सो लेट मी बिगिन विद यू स्मिता दीक्षित। स्मिता, आपने देखा किस तरह से मैरिजेस, रिलेशनशिप ओवर द पीरियड चेंज हो रहे हैं। ऐसे में पति पत्नी का रिश्ता इस हद तक आ जाता है कि पत्नी पति का मर्डर तक कर देती है, और हमारे जो क्रूअल्टी के, डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हैं वो ये रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि एक हस्बैंड भी विक्टिम हो सकता है। इस पे आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि क्राइम की दुनिया बहुत आगे निकल गई है और कानून बहुत पीछे रह गए हैं? स्मिता? Well, Mr. Lakhani, my take on this is that when we look at the international scenario, then the proportion of male and female spouses to intimate partner violence is roughly the same. Okay. We don't have any set statistics in India, but the sort of informal complaints that we receive, they somehow corroborate that only maybe say 10 to 15% male victims, they actually go about complaining, because the overarching experience of male victims is that they will not be believed, whether by the police or by the courts.
Secondly, And also there are no sections available wherein they will actually file once there are no I'm sections. coming to that. I'm coming Yeah. to that. Our Sure. law is strangely silent about the fact that these are crimes in which we have to be gender neutral. Because in a domestic partnership, either of the partners can be a perpetrator. What happens inside the four walls is that there could be even domestic abuse. Men undergo domestic abuse. We don't tend to recognize it. It could be financial, it could be emotional, it could be mental blackmail. Violence is the final stage. What we are seeing in Mr. Raju's case or say Mr. Gaurav's case, it is the ultimate state. Before that, abuse has happened, but our law does not recognize it. Right. And as he pointed out, it takes a woman will trigger a fight. She will fight. She will even indulge in violence. And what she has to do, she just has to give a call to the PRV. The police response vehicle will come, and immediately the guy is rounded up. No questions asked. There might not even be a proper crime. It could just be an exchange of verbal insults. But she has to say that he was harassing me for dowry, and it becomes an FIR immediately. In the case of Mr. Gaurav, it could be an NCR. I mean, seeing the injuries, my conservative opinion is that what the police inspector has told him that the summons would come from the court. Primarily, they might have registered it as an NCR based upon the injuries that they are not serious. But the point over here is that he is being definitely forced into an environment where he is at risk, at continued risk. Because in an NCR, the court will not be intervening. So what is the message? You can beat your husband. You can even put him away for an indefinite period. You can throw him out of the house, but he has no redress. So this is a gray area that I honestly feel that the legislature needs to wake up to, because these cases, they are increasing by the day. And it's not something now, at least the guys, they are educated and our society is more open to the fact that yes, these things, they are happening. We are discussing it. Earlier on, men, due to the considerations of family, kids, they would go silent. It's not that it was not happening earlier, but maybe because of joint families, there was a little bit of social restraint. Now in the nuclear families, that thing is not there. So that again puts them at risk. A man, he would find it very difficult to go and tell his friends that he is being abused or his wife is getting violent with him. Because one, it raises a question about his manliness. People might laugh at him that you cannot control your wife, or okay, what sort of guy you are that you are getting beaten. So in such And a even scenario, and even if he goes to the police station, look at the way they treat both genders. If Saurav, instead of Saurav's wife would have gone to the police station with similar or even lesser amount of injury, would they not had filed an immediate FIR? So will they wait that there is a attempt to murder or the man is murdered and then they file 302? Should he have waited that there was a much more grievous injury on him before there was an FIR? अगर वो वहां पर रुकता और वहां पर कंटिन्यू करता तो there would have been a disastrous situation maybe in a day or two. Would have been on a much higher level. So he had to actually escape a kind of an attempt of physical assault on him. see, the point is that like Mr. Gaurav, he was recounting his experience. He was saying that she repeatedly touched his forehead to somehow, reconcile with the fact, oh, it is not that big. And she It's was not pretty that cool serious. with it. Yeah. So that shows that somehow if tomorrow something bigger, major happens, she loses her cool, then he is definitely at risk. So what are we doing as a society? As a society, we talk about rule of law. Where exactly is the rule of law over here? Are we putting him out of a situation where he's at risk? No. So in a way, society and the law enforcement is failing. Again, I'll come back to you. I'll come back to you, Smita, on that. Sure. I'll go to Wasif now. Wasif, आप NGO रन कर रहे हैं पुरुषों के लिए. ये हस्बैंड मर्डर जो आजकल हमारे सुनने में आ रहे हैं, कितना सीरियस सिचुएशन है? और ये मतलब डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूअल्टी तो एक तरह से नॉर्मलाइज हो गई है. अभी हम हस्बैंड मर्डर्स के बारे में सुन रहे हैं, और ये नॉर्मल मर्डर से कैसे अलग हैं?
Thank you, Amit. Yes, husband murder recently, if you see last 10 to 15 years, it is becoming a serious issue. Specifically, see, I will connect with the case of Raju here. See, Raju's case was the background was his wife was probably having some extramarital affair. Okay. Okay. And what we have found that most of the murders, okay, they take because of they happen because of the wife is having some affair with some other man, or the husband is killed with the help of the paramour. Okay, I'll just share with you some news here. That most of the news you will see that they're because of adultery cases only. Okay. And recently we have been getting a lot of calls as well in the lockdown. That most of the calls, that adultery cases complaints are coming a lot. And I feel the background of this is that recently the court has, if you remember the Supreme Court judgment when they've abolished that 497 IPC 497. Yes. And They have decriminalized adultery. They have decriminalized it, and it is practically legal to have extramarital affair, and no criminal case will be filed. And at the best, what a spouse can do is that they can go for a divorce on that ground. So this has given a spurt in this case, because that fear of those cases is not there, no longer there. Okay. And primarily, see, in the cases of women, what we see is that system per se and society per se, they are quite lenient to them, and the plight of husband, the murder of husband, hardly gets any headlines, any attention. You will get the news in page 3, page 4, page 5, but not beyond that. But the murder of a woman, or say some sensitive issues are connected to it, it will grab a big headline. Maybe there will be big protest as well. So we tend to not discuss crime on men actually. Yeah, so fear of crime is not there amongst these spouses. Okay, that makes it a very serious issue. And whenever there is a conviction, the sentencing, if you say sentencing, the sentencing is much lesser than for the equal crime when committed by a husband. And I'll add a little, Vasif. देखिए, इसमें जो आपका perpetrator है, वो आपके साथ में है. You know, the perpetrator is sleeping with you. The perpetrator is in the same house. That is a big danger, because that's a big danger. बहुत से cases ऐसे आए हैं जहाँ पर खाने में poison मिला दिया गया, strangulate कर दिया गया, और बाद में उसको suicide दिखाने की कोशिश की गई, और इस तरीके से दिखाया गया कि वो एक accident है. ऐसे बहुत से cases आए हैं जहाँ पे बाद में पता लगता है कि it was actually the wife who perpetrated the crime. Yeah, absolutely. And they go to the police station saying that she is being harassed, and unfortunately, their complaint is taken on the word of it, and the complaint of the husband. I'll now go to Mr. P.K. Malhotra. Malhotra जी, आपने ये पूरी हिस्ट्री देखिए किस तरीके से कानून बने. 30-35 साल पहले जो कानून बनाए गए, तकरीबन 1996 में जैसे 498A आया, उसके बाद 304 भी डाउरी डेथ का कानून आया. तब सुनने में आता है कि उस समय एक मुहिम चलाई गई थी कि पत्नियों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, स्पेशल लॉज की जरूरत है. फिर उसके बाद 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, उसमें भी पत्नी ही विक्टिम की तरह देखी गई. उसमें यह नहीं देखा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक पति के ऊपर भी किया जा सकता है. आज समय यह है कि रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हस्बैंड्स के मर्डर्स हो रहे हैं. डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूएल्टी तो बहुत आम बात हो गई है. ऐसे में क्या जरूरत है कि कानूनों में बदलाव किया जाए आज की डेट में समय के साथ साथ? Thank you, Amit, for giving me this opportunity to be a part of this deliberation on the webinar. And I think this is a great opportunity when all of us are making use of this technology by interacting or sharing our thoughts when we are confined or we are locked down in our houses. It's a pleasure. This is an atrocity. It's atrocity when you are locked down in your house and you can't move out. But I think that is for a valid reason, because the government has declared lockdown just to protect our lives. Absolutely. But this has already given an opportunity where we are told that even cases under the Domestic Violence Act, which we are discussing today, have also increased during the period of lockdown. And when we are talking of this lockdown period and atrocities under the Domestic Violence Act, this is not only with regard to the women, but also domestic violence on the men also. I think it has cut both ways. But unfortunately, as the laws we have is, laws are only favoring the women and not the men.
Now, before I come to the main issue, I think because I'm a man with the background of law, having worked with the government for 40 years, we have to look at the history of these legislation, when these were made, why they were made. And if you look at the constitutional scheme also talk of equal right, and it was felt that because of our social structure, the women have always been at the receiving end and their rights needed to be protected. Therefore, these laws were made. But unfortunately, what happened, of course, Smita also told about it, that there is no empirical study made which says that how many cases of domestic violence were there against women and against men. Obviously, cases of domestic violence against the women are much more than against the men. But after these laws were made, more particularly the Dowry Prohibition Act of 1961 or 490 edition of 498A, probably there has been more and more misuse of these laws, and even the Supreme Court has also taken cognizance of it at a later stage. And not only that, even the Law Commission, I think in its report, if I correctly remember, way back in 172nd report, if I correct remember, in 2007, has asked to make this kind of offenses as gender neutral. But unfortunately, when government decided as a matter of policy, government decided it in favor of the women only. Similarly, in 2012 also, when Law made a report on 498A, it said that it should be made compoundable because large number of cases filed by the women for dowry descent, they were all found to be either not correct or filed mischievously. And all of you know, Amit, in dowry cases, generally what happens if a complaint is filed, the whole family suffers. Even the adults are also put behind the bar. Now, the two cases which we discussed of Raju and Gaurav, of course, these are cases of domestic violence, and even with regard to domestic violence also. Let me tell you, when initially the recommendations were made, the recommendation was that it should be a gender neutral offense. But ultimately, the Ministry of Women and Child Development, which was made responsible for its implementation, it said, no, it has to be in favor of the women because it is the women who is generally the victim. Because the large number of cases against women are there and against men, number of cases is not there. Probably it was not made gender neutral. And also probably, I will just add here, also probably there was no organization or to represent the men's side that time when the law was being made. To actually, because the mandate of WCD is to, about women and children. So when a law is made, which is going to affect the entire family, which includes men and women both, then I think the recommendations from both sides should be taken. No, even if there was some representation from the men's side, it was not as effective as it should be. So little voice was there. Take, for example, if somebody is in majority, another is in minority view is heard and then it goes there. It rests there. Nothing happens beyond that. So it was something like that which has happened. Now, talking of Domestic Violence Act again, the number of cases, as I said, has increased, and the cases of Raju and Gaurav, which have been discussed here, of course, I'm just talking about generally. In case there has been violence against them, of course, they may not have a remedy as on today under the Domestic Violence Act or under the Dowry Prohibition Act or under the other laws which are there, which are women-centric. Why can't they ask for a remedy under the normal law of the land under IPC? If they have been injured for causing grievous hurt or grievous injury, a case can be filed. But only thing is probably the police authorities are also reluctant to register this kind of cases. And once women make a complaint, probably that is given a more weightage. So one thing is very clear. All these laws which are discussing, they are not an end itself. They deal with a social problem. And social problem because it was deep rooted in society and more women were suffering. Therefore, these laws were made. But as all of us know, law is an instrument of social change. If the society has changed, if the system has changed, and if we find that the laws which were women-centering and made for women are being misused more and more, an empirical study need to be done and to see that in case they are being misused, why not to make them gender neutral as on today? And there is a possibility we can do it. And in that direction, even the Supreme Court also in some of the cases has said it. Take, for example, in Dowry Prohibition case, 498A cases also.
The Supreme Court has itself said that before the police arrest a person, there should be a check as per the procedure prescribed under section 41 of the CRPC, whether really, so meaning thereby a sort of inquiry should be conducted before the arrest can be made. But Right. unfortunately, this is not provided in the law. But fortunately, since Supreme Court has given such a direction, which we can say that it is a direction under Article 142 of the Constitution, where Supreme Court can give similar kind of direction. So probably that need to be followed by the police stations. But unfortunately, even the police stations are not. The implementation is also a problem. Yeah, that is a problem. And in addition to that, as I said, Verma committee report, when this Nirbhay case happened, even when the Verma committee gave its report, there was some reference to make certain laws gender neutral. But unfortunately, the atmosphere even at that time was so much surcharged that any leniency or any deprivation or any relaxation in the recommendation would have raised more hue and cry. Even in Yeah, there was also basically a lot of sentiment going on in the society and a lot of media pressure. So this could No. not happen. Exactly. Amit, one of the reason there was, I distinctly remember having discussed it with some of the people who were really responsible for administration of this and other NGOs also. And I find that the response was, because what was the proposal coming from one section of the society was that in case a woman files a false complaint with regard to the new law which is coming after the Nirbhay by the Criminal Law Amendment Act of 2013, then if she is filing a false complaint and ultimately prove that she has filed a false complaint, then probably action should be taken against her also. When this provision was made, probably those who were women-centric and because of the surcharged atmosphere at that time after the Nirbhay Kand, probably nobody was willing to make this kind of protection in the law. And I think time has come when, as I said, there is a need to all these laws. And as on today, we see how the rape laws are being misused, although that is an entirely different debate that we'll have someday and would want you to be a part of it. Exactly. One more point which I want to make here is that it's not that whenever pressure is there, government doesn't work on it. When proper representation is made, even that is also considered before the government. And I'm reminded of the Marriage Law Amendment Bill, which was introduced in 2010. Right. Where it was said that no fault liability in case it is there. And after 3 years, you come to the court and say marriage is irretrievable break. No allegation on any of the persons. A new provision should be made. But in that case, the property acquired during the wedlock or the man's property, half of it to the men. Now, this kind of law was also proposed, which was passed by one of the houses. I know. There was a lot of agitation which went around. A lot of people were against it because it also talked about division of inheritable property it is only after the pressure built in by the society, and this is again likely to be misused. Then only this proposal could not be carried forward. So in case, we are able to build up a proper pressure saying that a time has come when some of the women-centric laws where the men folk are victim of the atrocities committed by the women, they also need to be protected. I'm very sure that this can be reviewed and probably government can assign this job to the Law Commission of India, who can do some empirical study, can get data from some of the NGOs, National Crime Record Bureaus. The record can be looked into, and then probably looking at the data, probably changes in the law can be suggested. And I think that time has come now. As I said, law is an instrument of social change. If law is an instrument of social change, and in the society certain changes have taken places, we should take note of all those changes and see that the law is amended to meet the changing requirement of the society. And I appreciate that time. I remember a lot of men's rights activists and the Save Indian Family movement and a lot of activists, they worked on building this pressure that you're talking about, and that law, which was very draconian in their, provisions. It did not come. I'll come back on that again. But Lohit Mathani, Lohit ji, in the light of recent incidents of husband burning, husband murdered by wives, with all your experience in investigating crimes, what do you think, Lohit ji, are the main reasons for such crimes? Is it adultery, failed marriages, incompatibility?
आपने बहुत से इस तरह के क्राइम्स क्लोजली देखे होंगे. व्हाट डिराइव्स दिस क्राइम? हाय अमित, कैन यू हियर मी? वी कैन हियर यू. यस. या अमित, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अलग अलग जगह पे पोस्टिंग की है और ग्रामीण क्षेत्र में भी पोस्टिंग की है जी. एक चीज जो सच्चाई में डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या जो क्रुएलिटी होती है घर के अंदर, वो 90% वुमेन के खिलाफ होती है और 10% ही ऐसे केसेस हैं जो मैन के खिलाफ क्रुएलिटी होती है. और अगर मैन के खिलाफ जो क्रुएलिटी होती है उसके जो अगर हम मेन रीजन देखें तो सबसे मेन रीजन वो रहता है कि जो वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है. ये मेन रीजन है हस्बैंड मर्डर्स का जो मैंने देखे हैं. दूसरा प्रॉपर्टी, अगर वाइफ की कुछ ऐसी मोटिव होता है कि हस्बैंड की उसको प्रॉपर्टी हथियानी है. या फिर एक मेन रीजन रहता है जो कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग्स होती हैं जिसमें वाइफ का फादर इन्वॉल्व होता है या वाइफ के रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं हस्बैंड का मर्डर करने के लिए. इसके अलावा जो मोड ऑफ मर्डर होते हैं वो ज्यादातर केसेस में फूड पॉइजनिंग होते हैं क्योंकि वाइफ के लिए बहुत इजी होता है कि खाने में कुछ आर्सेनिक मिला दें या कोई ऐसी चीज मिला दें जिससे हस्बैंड मर जाए और पता भी ना चले कि वो मर्डर है. सेकंड जो ज्यादा चांसेस रहते हैं वो स्ट्रेंगुलेशन के रहते हैं जिसमें वाइफ जो रहती है अपने ब्रदर या अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड को स्ट्रेंगुलेट करती है, मतलब गला दबा देती है उसका. तीसरा जो रहता है वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मतलब वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपॉइंट करती है, पैसे देती है और उसको मरवाती है और ताकि पता भी ना चले कि वाइफ ने मरवाया. और कॉन्ट्रैक्ट जो किलर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि वाइफ ने उसको पैसे दिए हैं और एक्सेप्ट करता भी है तो बाद में उसको कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है. फोर्थली जो सबसे कम देखा जाता है वो स्टैबिंग, मतलब चाकू मार के या फिर गोली मार के हस्बैंड की हत्या की जाती है. तो ये चीजों में जो क्या कहते हैं हस्बैंड के मर्डर देखे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% ऑफ दी जो वायलेंस होता है वो विमेन के खिलाफ ही होता है. आज भी ये सच्चाई है. और लोहित जी, 10% इस पे मैं ये कहूंगा कि ये बात अगर कानून बराबर हो, कानून तटस्थ हो, कानून दोनों को एक नजर से देखें और उसके बाद ये बात जो आप कह रहे हैं ये आंकड़े हमारे सामने हो तो शायद ये जस्टिफाइड होगा. अब जब एक आदमी डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज अभी कुछ समय पहले एक आरटीआई लगाई गई थी एनसीआरबी में कि भाई हस्बैंड के ऊपर क्रूअल्टी, आपने अपने वाइफ्स के ऊपर क्रूअल्टी का डेटा दे रखा है, हस्बैंड के ऊपर क्रूअल्टी का आपने डेटा क्यों नहीं दे रखा? तो एनसीआरबी वालों ने बोला कि भाई साहब कोई सेक्शन ही नहीं है जिसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड करें. तो जब हमारा कानून उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, कोई सेक्शंस ही नहीं होंगे, आप आज 10% बोले या उसको 5% बोले या हम ये भी बोलते एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब कानून ही नहीं है आदमी के लिए उसके अंदर हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि कितने परसेंटेज है? और इसमें जैसे आज वासिफ जी भी हैं, ये एक हेल्पलाइन रन करते हैं, शायद ये थोड़ा सा इस पर लाइट डाल सके कि कितने इनको कॉल्स आते हैं और क्या ग्रेविटी है इस इशू की. Thank you for flagging this point. I'm sorry, sir. I don't really agree with that 90% data. So, see, we receive a lot of calls every day, and we are a very private social organization, as self-funded. This is not a government organization that has a reach to entire country. But every month we are receiving at least 5,000 to 6,000 calls from husbands, from men, or from their family members. And sir, थोड़ा अगर हम डेटा को भी अगर देखेंगे, आई एम सॉरी सर, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन बिकॉज 90% थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि हेल्पेज इंडिया की एक स्टडी है जिसमें डॉटर इन लॉ abuse by daughter-in-law towards senior citizen has been a major cause of concern for senior citizens. Okay. No, we cannot assume that agar daughter-in-law is a major concern, but towards husband she is being abused by the husband. Can I respond? Yeah, sure. मैं 90% जो बता रहा था वो डेटा नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने सच्चाई देखी है, और मैं फिजिकल वायलेंस की बात कर रहा था, केवल फिजिकल वायलेंस. इमोशनल वायलेंस सीनियर सिटीजन के खिलाफ जो घर में झगड़ा होता है उसके केसेस बहुत ज्यादा हैं, बट जो वाइफ हस्बैंड पे फिजिकल वायलेंस करती है, मारती है, उसके केसेस इतने ज्यादा नहीं है जितने वाइफ के खिलाफ है. और जो आप लॉ की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है ऑफकोर्स जेंडर बायस्ड है. हमारा जो चीटिंग है, जो मतलब फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे जो रेप केस दाखिल होता है वो जेंडर बायस्ड है. 304B डॉरी डेथ जेंडर बायस्ड है. लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन पिनल कोड के अलग सेक्शंस हैं वो जेंडर बायस्ड नहीं है. जैसे कि अपना हर्ट के सेक्शन है 323 है, 324 है हर्ट विद वेपन, ग्रीवियस हर्ट है 326 है, अटेम्प्ट टू मर्डर है 307 है,
328 है जिसमें हर्ट विद अ पॉइजनस सब्सटेंस है, ये सब जेंडर न्यूट्रल है। अगर कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड को मारती है तो इन सब सेक्शंस के अंडर में गुनाह दाखिल हो सकता है, और अगर मर्डर ही हो जाता है तो 302 तो जेंडर न्यूट्रल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स इस बात को सोसाइटी नहीं मानती कि वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ फिजिकल वायलेंस किया है, पुलिस स्टेशन में वो लोग जाते हैं तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर उनकी बात को माना नहीं जाता, लेकिन स्टिल हस्बैंड के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि सेक्शन 156 सीआरपीसी के अंदर वो डायरेक्ट कोर्ट में एफआईआर दाखिल करवा सकता है। पुलिस कंप्लेंट दाखिल नहीं कर रही तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट कर सकता है, स्टेट पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड वहां पर कंप्लेंट कर सकता है, महाराष्ट्र में आपला सरकार करके पोर्टल है वहां पर कंप्लेंट कर सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हालांकि ये बात मानी नहीं जाएगी। Rohit ji, I would gracefully, Amit, add to it. I would I would like to add हाँ, one point to it, yeah. Vasif, before I come to you. देखिए, मर्डर का कानून ऑलरेडी है जो कि जेंडर न्यूट्रल आपने बताया, तो हमारे को 304B की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे पास ऑलरेडी कानून थे जो जेंडर न्यूट्रल थे, जो कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए थे, जो कि पहले भी थे, जो कि एक पत्नी यूज कर सकती थी, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी या 498A की क्यों जरूरत पड़ी? तो बेसिकली ये सब कानूनों को जब बनाया गया तो ये देखा गया कि एक पत्नी एक विक्टिम है। आज जब हम देख रहे हैं कि एक आदमी भी उसी तरह से विक्टिम हो सकता है, तो क्यों ना उन कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए? सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों आईपीसी क्योंकि दुनिया के देशों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, एक हस्बैंड भी जाके कंप्लेन कर सकता है। नहीं, दुनिया के देशों की बात नहीं करते, हम लोग इंडिया की बात करते हैं। जैसे आपने पूछा कि जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको पूरा डोमेस्टिक वायलेंस का एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कोशिश ये करता है कि जो विमेन के खिलाफ वायलेंस हो रहा है उसको तो हम लोग बचाए, लेकिन साथ में उसकी जो मैरिज है उसको भी बचा सके। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मेन मकसद ये है कि मैरिज भी नहीं टूटनी चाहिए और वायलेंस भी बच जाए। तो उसमें क्या होता है कि एफआईआर इमीडिएटली दाखिल नहीं होती, एफआईआर दाखिल होने से पहले 3 बार काउंसलिंग होती है, 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, और कोशिश की जाती है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़ा है वो रोका जा सके। और इसके अलावा उसमें एक प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, एक जज वार्निंग देती है पुलिस हस्बैंड को कि आप अपने वाइफ के खिलाफ वायलेंस मत कीजिए, अगर आप ऐसा वायलेंस करेंगे तो आप पे आगे जाके एफआईआर दाखिल हो सकती है। स्मिता जी, इसमें स्मिता जी का मेरे को मैसेज आया है, वो कुछ ऐड करना चाहेंगे। स्मिता जी ने भी Smita ji, you've seen matrimonial dispute entering the courtrooms very closely. You must have seen laws being misused, perjury on wife being ignored, misuser going scot-free, and the whole divorce process so cumbersome and lengthy. Apart from what you want to add here, Smita ji, do you also think that divorce is still it's a taboo in the society, and the fact that when it is not working out between two people, they are unhappy, there is hate. And it should be a little easier to walk out of the relationship. Adultery has been decriminalized. In a way, it is normalized. So should divorce also be normalized? And how? This is apart from what you want to respond to. Yeah, thank you, Amit ji, for raising this pertinent point. Before I respond to what you have raised, I would just like to add one thing to what Officer Matani was saying. We had a case in point of Mr. Raju. Now that person, he has suffered burn injuries, more than 50% he has suffered, and despite that his FIR was not registered. He has gone on record to say, ideally this was a case of 307, which is a gender neutral crime. It was not registered. What rather he suffered was that he had to undergo proceedings of maintenance. He had to undergo proceedings of divorce. We'll appreciate if you can also Smita ji, if you can also use Hindi, because a lot of calls that we get, people say that we want to hear it in Hindi. Sure. Lot of messages, yeah. So like इनका राजू जी का जो केस है वो केस इन पॉइंट है, उसमें 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनकी वाइफ ने उनको जान से मारने की पूरी कोशिश करी, वो बच गए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन उसके बावजूद उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। ऑफिसर मटानी ने अभी बोला कि ये सारे क्राइम्स जो हैं ये जेंडर न्यूट्रल हैं आईपीसी के, बट जेंडर न्यूट्रल क्राइम का उनका तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, उनको मेंटेनेंस का केस लड़ना पड़ा।
उनको डिवोर्स का केस, तलाक का केस फेस करना, इस स्थिति में कितना पीड़ादायक, कष्टदायक रहा होगा। ऐसी कंडीशन में जब इंसान के पास नौकरी नहीं है, उसको मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स फेस करनी, बीवी का ये जानते हुए कि उसने उनको जान से मारने की कोशिश करी, उसको पैसा देना, मतलब ये और कौन से देश में आप देखेंगे ऐसा कि जो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, आप उसको हर महीने गुजारा भत्ता सौंप रहे हैं। तो इस चीज को अलग रखते हुए आपने जो पॉइंट उठाया डिवोर्स का, दैट मे बी ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे इरिवोकेबल ब्रेकडाउन हो जाता है मैरिज का, इरिट्रेबल नहीं मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जहां पर हस्बैंड इज ऑलरेडी सफरिंग, he there is so much toxicity in the relationship, there is so much abuse, there is so much unhappiness in the relationship and there is so much hate. वहां पर अगर हस्बैंड सोचे कि मेरे को इस रिलेशनशिप से, देखिए अगर यही बात अगर एक महिला आके बोले कि दिस इज व्हाट आई एम सफरिंग इन माय मैरिज, तो हर कोई इसको कहेगा कि डोंट सफर एंड कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, लिव योर लाइफ। बट अगर एक आदमी को आप कहें कि डोंट सफर, लिव योर लाइफ, कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो उसके ऊपर हजारों केसेस थोप दिए जाते हैं और उसकी पूरी लाइफ कोर्ट कचहरी में निकल जाती है। डिवोर्स को सालों साल, 20-20 साल हम देखते हैं डिवोर्सेस नहीं हो पाते। अमित जी, आप इसमें इनका गौरव जी का ही केस उठा करके देख लीजिए, ये एक तरह से नजीर है। घर में कौन रह रहा है? इनकी वाइफ। ये 2 दिन इन्होंने गाड़ी में गुजारे हैं, पुलिस ने कह दिया हमको जो करना था हमने कर लिया, ना तो इनको जस्टिस मिली है, अपने घर से ये बेघर हो चुके हैं, कोई रिड्रेसल नहीं है इनका। तो ऐसी कंडीशन में जब कानून बीवी को हक दे रहा है मुफ्त का पैसा का, मुफ्त की जायदाद का, मुफ्त के ऐशो आराम का, तो वो आसानी से पीछा कैसे छोड़ देगी? हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे मैन विक्टिमाइज्ड है, अग्रीव्ड पार्टी है, उसको केस को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि इनकी जान छुड़ानी है हमको, इनको तलाक दिया जाए, ये नहीं रह सकते, इनकी जान को खतरा है, तो कोर्ट को वो चीज मानने के लिए हमारे पास कानून नहीं है, ना ही जजेस जो हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत से केसेस में हमने देखा कि कोर्ट की पूरी सिंपैथी होती है, पूरी सिंपैथी होती है हस्बैंड के साथ, बट वो क्या एक्सक्यूज देते हैं? द लॉ इज लाइक दैट। आप अपील में जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारे लॉज, हमारे कानून विमेन सेंट्रिक हैं। ये चीज जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग चेंज नहीं ला सकते। 90%, 10% का वैल्यू शायद पुलिस इसलिए बता सकती है क्योंकि केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, आदमी पिटते हैं, चोट लगती है, मारे जाते हैं, उनका FIR रजिस्टर ही नहीं होता है। कितने लोग जाएंगे बताने के लिए कि आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मार के घर से निकाल दिया? जाके किसी फ्रेंड का रात निकाल लेते हैं, 2-3 दिन में फिर बच्चों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, सामाजिक जो उनको एम्बैरेसमेंट होता है उसकी वजह से वापस आ जाते हैं। उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी का फायदा हमारी व्यवस्था उठा रही है। कहीं ना कहीं हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे चेंज की जरूरत है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ब्रिंग अराउंड द चेंज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मल्होत्रा जी, एक बार मैं दोबारा आपके पास आऊंगा इसी बात पे जो अभी मिस दीक्षित ने उठाई। अगर 498A पति द्वारा क्रूअल्टी को कवर करता है, तो पत्नी द्वारा क्रूअल्टी को क्यों नहीं कवर कर सकता? अगर शादी के 7 साल बाद कोई अननेचुरल डेथ होती है और कहा जाता है कि हेलो, आपका वॉइस ब्रेक कर गया बीच में। हाँ मल्होत्रा जी, मैं आपसे, यू कैन हियर मी नाउ? हाँ जी। मल्होत्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे मिस दीक्षित ने बताया, उसी को आगे ले जाके मैं आपको कहूंगा कि जैसे 498A पति द्वारा क्रूअल्टी को कवर करता है, तो जब पत्नी द्वारा पति के ऊपर क्रूअल्टी होती है उसको कवर नहीं करता। शादी के 7 साल बाद अगर अननेचुरल डेथ हो तो उसको डाउरी डेथ का दर्जा दिया जाता है कि भाई पत्नी के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज मांगा जा रहा था। लेकिन जब पति को से कोई इस तरह की डिमांड्स की जाती हैं, अनरीजनेबल होती हैं रिलेशनशिप में, और हस्बैंड की इसी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है, तो 304 का कोई ऐसा सबसेक्शन क्यों नहीं हो सकता जो हस्बैंड को भी वही न्याय दिला सके? डीवी का कानून है, डीवी ऑन मेन जो है हमारा कानून कवर नहीं कर। क्रक्स ये है कि दूसरे देशों में भी, क्योंकि जब भी हम कानून बनाने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपैरिजन होता है कि उस कंट्री में इक्वालिटी है और उस कंट्री में जो कानून है वो इस तरह से बनाए गए हैं, तो हमारे कानून भी इस तरह से होने चाहिए। हम लोग काफी कंपैरिजन लॉ मेकर्स भी करते हैं। तो दूसरे देशों की तरह भारत में कानून जेंडर न्यूट्रल क्यों ना हो?
जब क्राइम का कोई जेंडर नहीं है तो कानून पक्षपाती क्यों? यदि आपको लगता है कि कानून में बदलाव होना चाहिए तो किस तरीके से? अमित जी, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक कर रहा था, लेकिन स्टिल द क्वेश्चन इज क्लियर टू मी, कोई उसमें इशू नहीं है। आई विल ट्राई टू आंसर इट, लेकिन उससे पहले I will also add to it, मल्होत्रा जी, क्योंकि बहुत से लोग इस मुहिम पे काम कर रहे हैं सालों से, ये उनके लिए है, क्योंकि आप शायद उनको बेटर गाइड कर पाएंगे कि ऐसे में कानून बदलने की क्या प्रक्रिया रहेगी। अमित जी, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस पर आऊं, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहूंगा कि आज जो बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट आपने शुरू किया है, उसमें आपने पैनल का जो चुनाव किया है, मैं उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आपने एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को लिया जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, एक पुलिस ऑफिसर को लिया जो जिनके पास केसेस रजिस्टर होते हैं, और आपने एक्टिविस्ट को भी लिया जो एक्चुअली जिनके पास एक्चुअली कंप्लेंट्स आती हैं और इनको वो परस्यू करते हैं, और ऑब्वियसली एक पॉलिसी मेकर जो रहा है गवर्नमेंट में, उसको लिया। So I think this is a very good combination of the panel which you have formulated, and I compliment you for that. Thank you, Malhotra ji. Our basically our aim is to come out with a solution for the society, and also we are doing this for the sake of awareness in the society that what is happening. So Amit, what I would say is स्मिता जी ने जो बातें कही और मथानी साहब ने जो बातें कही, अगर मुझे एक सेंटेंस में उसका जवाब देना हो तो मैं ये कहूंगा, लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन प्रैक्टिस, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। जो स्मिता जी बात कर रही हैं वो बात कर रही हैं लॉ इन प्रैक्टिस कि उनको जस्टिस नहीं मिला कंप्लेंट करने के बाद। जो मथानी साहब बात कर रहे हैं, मथानी साहब बात कर रहे हैं लॉ इन बुक्स कि आपके पास प्रोविजन हैं, लॉ के प्रोविजन हैं, लेकिन जब आप कंप्लेंट लेकर के जाते हैं तो प्रोबेबली अथॉरिटीज उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन विमेन सेंट्रिक लॉज। और जैसा कि मैंने पहले कहा, विमेन सेंट्रिक लॉ हमारी कंट्री के लिए कोई पिक्यूलियर नहीं है, वर्ल्ड ओवर है ये, दुनिया के दूसरे देशों में भी विमेन सेंट्रिक लॉ है, क्योंकि विमेन और दूसरे सेक्शन है सोसाइटी के जो वल्नरेबल हैं, जिनके ऊपर ज्यादा एट्रोसिटीज और क्राइम किया जाता है। तो उससे होता क्या है कि जिनके ऊपर ज्यादा क्राइम होता है उनके लिए तो आपने लॉ बना दिया, लेकिन जो कम अफेक्टेड है उससे, मान लीजिए 70% women are affected and 30% men are affecting, so you are compromising with the interest of 30% men folk to compensate the 70%, and you are shifting the burden of proof also, you are giving them all sorts of benefit, and you are saying that whatever that they are saying that should be taken at face value. So ऐसी सिचुएशन में जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि they should take every such complaint with a pinch of salt and investigate it properly before they come to the conclusion that here is a case which need to be properly tried under this law. As I said earlier, at the cost of reputation, I said these are all social issues, they are not legal issues. So if you are looking remedy only in the law, law is not an end in itself. It is only an instrument will help you in a social change. जब ये लॉ बनाए गए उस समय इस तरह के लॉस की जरूरत बहुत समझी गई, लेकिन जैसे जैसे ये लॉ इंप्लीमेंट हुए उनका मिसयूज ज्यादा होना शुरू हुआ। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन यू शुड अगेन हैव ए रीलुक एट दीज लॉज सो दैट दोज हु आर सफरिंग देयर सफरिंग्स कुड बी रिड्यूस्ड। नाउ द टू एग्जांपल्स ऑफ राजू एंड गौरव व्हिच वी हर्ड टुडे, रियली दे हैव सफर्ड। जो मथानी साहब कह रहे हैं कि नॉर्मल लॉ के अंदर जो जेंडर न्यूट्रल है उसमें उनके अगेंस्ट केसेस रजिस्टर होने चाहिए थे, लेकिन स्मिता जी ने बताया केसेस रजिस्टर नहीं हुए। तो आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। वो क्योंकि कानून ने अपना काम नहीं किया, उनके साथ ज्यादती हुई और कानून ने काम नहीं किया, क्योंकि उनके विमेन सेंट्रिक लॉज एग्जिस्ट करते हैं और विमेन को जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जैसा कि मैंने कहा 498 में भी आई, लेकिन आज भी पुलिस अथॉरिटीज उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। अगर 498 का केस आ जाता है तो उठाइए और पूरी फैमिली को जेल में बंद कर दीजिए। जो कंसिलिएशन का प्रोसेस है, फैमिली कोर्ट में जाना है, थाने के अंदर आपका सेपरेट कंसिलिएशन के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस बनाया गया, लोगों को इन्वॉल्व किया गया, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद उस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सी हमारी एनजीओज हैं अक्रॉस इंडिया जो कि सालों से इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं।
सोशल मीडिया पे भी आजकल हम देखते हैं कि इन सब मुद्दों पे बातचीत हो रही है कि कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, कानून का मिसयूज हो रहा है। आप विद ऑल योर एक्सपीरियंस आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज बहुत सारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जा रही हैं, कुछ लोग PILs लगा रहे हैं और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। तो ऐसे में कानून बदलने की क्या प्रक्रिया रहेगी, या कभी हम नहीं। देख पाएंगे कानून को बदलते हुए? यस, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बदले, कानून बदले हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जब निर्भय केस हुआ तो उसके बाद भी आपने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लॉ लेके आए। ऑफ कोर्स वो विमेन के फेवर में था, दैट्स अ डिफरेंट इशू। इसी तरह अगर एक सोसाइटी की तरफ से एक डिमांड गवर्नमेंट के सामने जाती है एंड विद लॉजिक जाती है, उसको गवर्नमेंट भी प्रॉपरली कंसिडर करती है, लेकिन उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक एंगल दोनों देखे जाते हैं, पॉलिसी एंगल भी देखा जाता है, कितनी नीड है जरूरत की, उसके लिए जब तक एक एम्पिरिकल स्टडी गवर्नमेंट के सामने नहीं आती है, शायद उस तरह की रिक्वेस्ट को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो मेरा यही कहना है कि जो भी एनजीओ इस प्रपोजल को गवर्नमेंट के सामने लेकर के जाती है, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा के साथ जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको उतना वेटेज नहीं मिलता है जितना वेटेज उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम इसके लिए कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंड करें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही हमें देगा। जैसा कि स्मिता जी ने भी कहा, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मैन फोल्क जो है वो कंप्लेंट करने जाते ही नहीं है पुलिस स्टेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मैनली हुड जो है वो अफेक्ट होता है। और सोशल चेंज की अगर आप बात करें तो फैमिली के लोग भी कहते हैं, अरे घर की बात है, उसको घर में रहने दो, बाहर मत जाने दो। तो जी। इस तरह का जब तक हमारा ये टैबू खत्म नहीं होंगे, तो इस तरह के क्राइम को कम करने के लिए हम जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाएंगे। और उससे भी बड़ी जरूरत है, मैं समझता हूँ, अवेयरनेस की। और वो अवेयरनेस का पार्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, आई थिंक एनजीओस को उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। और आपकी एनजीओ है, दूसरी एनजीओ है, अगर वो इस तरह की स्टडी ला करके गवर्नमेंट के सामने रखती हैं और इस तरह की एडवोकेसी करके लोगों को थोड़ा एजुकेट करती हैं, तो शायद सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट हो पाएगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर एक केस को प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाता है तो कानून बनाने वाले जरूर उस पर कंसिडर करेंगे और कानून में जरूर चेंजेस आएंगे। जी, थैंक यू। सो लोहित जी, मैं एक बार दोबारा से आपसे आपके पास आऊंगा। देखिए, लॉज आर बीइंग मिसयूज्ड, ये हर सोसाइटी के, अब किसी भी तबके में चले जाएं, आजकल बात हो रही है लॉज आर बीइंग मिसयूज्ड। और पुलिस को बहुत बार पता होता है कि ये झूठा केस है, तब भी अधिकतर केसों में चार्जशीटिंग कर दी जाती है। यहाँ ये इसलिए रेलेवेंट है कि जब सोसाइटी में ये देखा जा रहा है कि अ वुमन कैन मिसयूज लॉ, शी कैन हार्म एनीबडी, you can get the benefit of your gender and get away, तो एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती कि आप एक क्राइम भी कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे, आप पे कोई शक नहीं करेगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा? देखिए अमित जी, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, बट महाराष्ट्र में एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्क्रूटिनी कमेटी बैठती है। कोई भी चार्जशीट दाखिल होने से पहले एक स्क्रूटिनी कमेटी बैठती है, जिसके जो हेड होते हैं वो जिले के एसपी होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर होते हैं वो उसमें होते हैं, और एक लॉ ऑफिसर होते हैं। तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर केस में चार्जशीट की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। वो ये देखते हैं कि उस केस में एविडेंस है कि नहीं है। और अगर मान लीजिए उनको चार्जशीट नहीं करनी है तो 3 प्रकार के तरीके से वो चार्जशीट नहीं करते हैं। पहला वो ए फाइनल करते हैं। ए फाइनल का मतलब होता है कि उसमें आरोपी जो है वो मालूम नहीं है उनको कौन है, या फिर एविडेंस कम है। बी फाइनल तब करते हैं जब उनको लगता है कि कंप्लेंट फॉल्स है। सी फाइनल तब करते हैं जब उनको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेंट कर दी गई है, औरत ने गलती से कंप्लेंट कर दी है, अब औरत को लगता है कि कंप्लेंट उसने नहीं करनी चाहिए थी। और ज्यादा से ज्यादा केसेस जो क्लोज होते हैं, चार्जशीट नहीं होते हैं, वो सी फाइनल होते हैं, जिसमें महिला खुद आके बोलती है कि मैंने जो कंप्लेंट की थी, रेप की कंप्लेंट की थी, वो गलत थी, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की थी, वो गलत थी। और जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग शायद फॉल्स कंप्लेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बी फाइनल कर सकते हैं। बी फाइनल करने में सर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट में जाके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करना पड़ता है कि क्राइम हुआ है, वैसे ही अगर बी फाइनल करना है तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्राइम नहीं हुआ है। क्राइम नहीं हुआ है ये प्रूव करना पड़ेगा, वो भी उतना ही मुश्किल है जितना क्राइम हुआ है ये प्रूव करना। इसलिए बी फाइनल जो होता है वो कम होता है। बस कुछ केसेस में बी फाइनल हो पाता है जिसमें हम लोग एलाई बाय प्रूव करते हैं। एलाई बाय का मतलब कि अगर एफआईआर में एक टाइमिंग दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, और हम ये प्रूव करते हैं कि हस्बैंड उस टाइम पर, मान लीजिए वाइफ कहती है कि घर उसका दिल्ली में है और दिल्ली में उसके हस्बैंड ने उसको मारा, और हम प्रूव कर देते हैं कि नहीं, हस्बैंड तो उस समय मुंबई में था,
Like open and shut मार ही नहीं case. सकता। Open तो and shut cases. तो उस केस में हम लोग ये बी फाइनल प्रूफ करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में सर क्या होता है कि वो कंप्लेंट होती है पूरे 1 साल पुराने, 1 साल तक वायलेंस हो रहा है, या फिर 1 साल तक फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज में 1 साल तक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है। तो इसमें पूरा 1 साल के टाइम पीरियड में एलआईबाई प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। सर एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस जज नहीं है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट का काम है जजमेंट देना। पुलिस का काम होता है कि एविडेंस कलेक्ट करना। अगर उसको कुछ एविडेंस भी मिलते हैं विक्टिम के सपोर्ट में और कुछ एविडेंस मिलते हैं एक्यूज के सपोर्ट में, मतलब विक्टिम के अगेंस्ट, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो विक्टिम के सपोर्ट के एविडेंस को कोर्ट के सामने रखे, विक्टिम के अपोज के एविडेंस को कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट दे। अगर जीरो एविडेंस है तो पुलिस एटलीस्ट महाराष्ट्र में केस को क्लोज करती है, लेकिन अगर कुछ एविडेंस है तो पुलिस कोशिश करती है कि कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट जजमेंट दे, क्योंकि पुलिस कभी भी जज की कुर्सी पर नहीं बैठती। पुलिस कोशिश करती है कि जो भी एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखे जाएं और जज को पूरा अधिकार होता है कि वो कन्विक्ट करे या एक्विट करे। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फॉल्स केसेस में जो कन्विक्शन रेट रहता है, आई थिंक वो बहुत लो है। आई थिंक दैट इज लेस देन 1%। फॉल्स केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है। और जैसा कि सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का आपने कहा कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, मुझे लगता है दिल से ऐसा लगता है कि आने वाले 10 या 20 साल में ये चीज जरूर होगी। और एक सुप्रीम कोर्ट ने सर एक जजमेंट दिया था हीरल पी हरसोरा के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को उसने अमेंड किया था और उसने कहा था कि विमेन और माइनर भी परपिट्रेटर हो सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है। हालांकि उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो अगर सोसाइटीज जो एनजीओ है उस चीज को दोबारा से, उस केस को मुद्दा बनाकर अगर दोबारा से पीआईएल दाखिल करे और गौरव का केस, राजू का केस, ऐसे केसेस को वो अगर मुद्दा बनाकर अगर दोबारा से पीआईएल दाखिल करे, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से ऐसा जजमेंट पास करे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। मोर ओवर, इससे ज्यादा जो डेडली चीज है वो होता है रेप का केस, जिसमें ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। मतलब हस्बैंड, जो लड़का लड़की लिव इन में रह रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी में लिव इन में रहना अलाउड है, कोई इसमें गलती नहीं है। ये अपने आप में, ये डिबेट अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है। जिस तरीके से मिसयूज ऑफ रेप लॉज हो रहा है, हम इस पर जरूर एक दिन पूरी चर्चा करेंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे, क्योंकि बस यही कहना चाहता हूँ कि उसमें भी एक अमेंडमेंट आना चाहिए जी। लेकिन लोहित जी, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मल्होत्रा जी ने बोला कि 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया टू स्टॉप द रेप केसेस, और उसके बाद ही कहते हम बात कर रहे हैं कि इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम, फॉल्स केसेस हैव बिकम अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली एक 1983 में अमेंडमेंट आया था 498A का, that has failed. Today we are saying that it was not required. Today is not required. और अभी 6-7 साल पहले एक अमेंडमेंट आया in the same process, knee-jerk reaction से, and that has also failed. So basically, what I'm trying to say here is that हमारा entire process of law change, law reform, law modification is totally flawed. Actually, I'm sorry to use this strong language. Okay, I'm an activist. I go and represent to the authorities. I've been to the Rajya Sabha as well. I've made representations. I've made representations for that marriage law amendment bill as well. Okay, so I'm very sorry that that 2013 amendment happened because there was a big agitation in India Gate. So our law changes not because there is a data. Data is required to make a representation, but law changes because somebody is pushing them to change the law. There was a lot of sentiments which was going. There was a lot of media pressure. And these sentiments get triggered when there is a woman involved. It doesn't get triggered when there is a man involved. आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूंगा कि जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ पढ़ते हैं और फिर ये सब देखते हैं जो सोसाइटी में हो रहा है, तो लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कहीं कहीं शायद कोई चूक तो नहीं हो रही है। खैर समय का अभाव है, इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ closing comments चाहूंगा, and very quickly I'll come to Smita. Smita, what should be done? Can judiciary help in all this? See, the thing is that if you ask me what should be done, then yes, the constitution needs to be upheld. Article 14, it needs to apply across the board, and that is something in which we are failing consistently. So that should be the moot point with which we have to work forward. Whether it is a woman or it is a man, whoever is suffering, we cannot
rush to preconceived notions. In the case of men, it is always that they are judged guilty. In the case of women, innocent till proven guilty. So that bias, it needs to be taken care of. लोहित जी, आपके आखिरी कमेंट्स क्या होंगे? अगर कोई आपके सुझाव हो, आपके सुझाव इनफैक्ट पुलिस के महकमे के लिए, जैसे आपने बताया कि या पुरुषों की कंप्लेंट्स में किस तरह से एक्ट कर रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, बट एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पुलिस स्टेशन में फेस की जाती है वो होती है क्रॉस कंप्लेंट की। क्रॉस कंप्लेंट में क्या होता है कि अगर आपने कंप्लेंट किया तो आपके सामने वाला आदमी भी कंप्लेंट करेगा उसी टाइम पे आके। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस को सर अगर जेंडर न्यूट्रल किया गया तो क्या होगा कि वाइफ ने कंप्लेंट की, उसी टाइम पे हस्बैंड भी आ जाएगा और कंप्लेंट कर देगा। और क्रॉस कंप्लेंट में क्या होता है कि फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होता है आउट ऑफ द कोर्ट और फिर दोनों को जस्टिस नहीं मिलता। वो तो अभी भी होता है मथानी जी। अभी डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं होता ना सर, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपको मीडिएशन में भेज दिया जाता है और एक मॉनिटरी सेटलमेंट की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से मतलब कॉम्पनसेशन देके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके इसको रफा दफा किया जाए। वो तो होता है बट क्रॉस एफआईआर नहीं होती। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जो आईपीसी के जो दूसरे सेक्शंस हैं, हस्बैंड की जो लीगल राइट्स हैं, जो हस्बैंड विक्टिम्स होते हैं, उनको अपनी लीगल राइट का पूरा अंदाजा होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। एनजीओ ने उनकी मदद करनी चाहिए कि आपके क्या लीगल राइट्स हैं। और अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है तो आपको एफआईआर कैसे रजिस्टर करानी है? कोर्ट में जाकर रजिस्टर करानी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर रेफर करानी है, स्टेट पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में जाके उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। ये सब चीजें एनजीओ ने उन आदमी को बतानी चाहिए। और आदमी को अपने लीगल राइट्स अगर पता रहेंगे तो मुझे लगता है कि आदमी भी इस चीज को फाइट कर पाएंगे। तो अगर आदमी और औरत दोनों को अगर अपने लीगल राइट्स पता रहेंगे तो हम लोग एक हैप्पी फैमिली बना पाएंगे, जिसमें दोनों को पता है कि अगर उन्होंने लॉ का मिसयूज किया या फिर कुछ गलत क्राइम किया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट आदमी जो विक्टिम होता है, मैं मानता हूं कि उसके अंदर एक थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए और उसकी लीगल नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और जानकारी उसकी अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है कि पुलिस उसका इमीडिएटली हेल्प ना करे, लेकिन अगर वो पीछे लग जाए, उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, तो जस्टिस उसको जरूर मिलेगा। ये मैं Malhotra ji, your last comments. If the lawmakers are listening to you today, I'm sure they would take your suggestion very, very seriously. So a message to them, Malhotra ji. Amit ji, Smita talked about Article 14. I think Article 14 is not to be read in isolation. It is read along with Article 15 and 16 also, which definitely, talks about affirmative discrimination in favor of certain sections of the society. I'm not talking of women alone, but I'm talking in general terms. So you cannot stop making of a law which favor a particular section of the society if they meet the requirement of Article 14, 15, and 16. But so far as certain women-centric laws are concerned and making modification on these laws is concerned, I'm very sure, and I am saying at the cost of repetition, कि समय आ गया है कि इन लॉज को रिव्यू किया जाए। मोर पर्टिकुलरली आई थिंक मथानी जी ने भी उस जजमेंट का जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि परपेट्रेटर एंड अबेटर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी विमेन ऑल्सो। ये उन्होंने एक्ट को इंटरप्रेट करते हुए किया जो विमेन सेंट्रिक लॉ था। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी ये सेंटिमेंट्स हैं तो मैं समझता हूं समय आ गया है कि लॉ मेकर्स को उस लॉ को रिव्यू करके दोनों को एक जैसे अधिकार देने चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मेन के अगेंस्ट भी हो सकता है, केवल विमेन के अगेंस्ट नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है। और जो सो फार एज 498 इज कंसर्न, उसमें मैं समझता हूं जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और जो फिगर आ रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको एक इंटरप्रिटेशन देके कहा है कि जो सीआरपीसी का प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है बिफोर अरेस्ट, दैट शुड बी फॉलोड, it should be given a legal backing by making necessary amendment in the law, and that offense also need to be made compoundable so that जो आप mediation की बात कर रहे थे उसको हो सके। Now this is a declaration made by the Supreme Court. The legislature can take a cue from it, and what direction the Supreme Court has given after examining all these cases, I think that should be taken seriously, and the law need to be reviewed in that regard. Sure. Wasif Ali, what do you think should change?
Yeah, I mean, I will quickly make my Very my quickly. final points here. Yeah, we are short of time. See, we are all talking about, we have touched upon data as well. So I've got various points to say, but all the panelists have covered those points. So my main um, uh, comment is that we should start collecting data. Okay, in the IPC and CRPC and NCR, in the NCRB data, we should include spousal murder and should cover both men and women as well. Who has murdered whom, who has murdered whom, and what has been the cause of those murders. Because we have seen in suicide data, when such classification is done, we find that double the men commit suicide than women. I am, as an activist, when I see all around, when such data is collected with such classification, it's possible that you may see that more husbands are murdered than wives are murdered. Okay. So the question is that is it time now to have laws which also protect men like they protect women? And the answer is clearly yes. When a man suffers domestic violence or spousal cruelty, he generally doesn't come out for various reasons. And even at instances when he wants to seek protection, the law doesn't protect him. So clearly there is a need to have equality before law in real sense. जब मैरिज और रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हो जाते हैं that there is hate, there is revenge, it is better to move out before you reach to a level that there is a loss of life. डिवोर्स के प्रोसेस को और इजी और फास्ट होना चाहिए और सोसाइटी को डिवोर्स एज अ सोशल रियलिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि किसी को भी सोसाइटल प्रेशर में ऐसी रिलेशनशिप में ना रहना पड़े जहां पर उसकी जान को खतरा हो. कानून बनाने वालों को समझना होगा कि समय बहुत आगे निकल चुका है और कानून को समय के साथ बदलना होगा. और सोसाइटी में बैठे लोग जो इक्वालिटी चाहते हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे कैंडल मार्च तक करने पहुंच जाते हैं, पर पुरुषों पे जब प्रताड़ना होती है तो उसको मजाक में ले लेते हैं. जी हां, आपको अपने जमीर को जगाना पड़ेगा क्योंकि कल को ये आपके साथ हो सकता है, आपके भाई के साथ हो सकता है, आपके दोस्त या किसी भी करीबी के साथ हो सकता है. ये सच्चाई का एक और रुख है. With that, I would want to thank all my guests for their time and inputs today. I'm sure it was much enlightening for the viewers also. Thank you, Malhotra ji. Thank you, Smita Dikshit. Thank you, Lohit Mithani ji, Wasif Ali, for joining us on this live. Thank you very much. And a very good night to all of you. Thank you.